Hi, it's me Anila representing Fatma Academy, and today I'm going to give you the lecture about session 1 of reading module. As you can see, there are a lot of paragraphs. I'm going to show you over here. There are approximately 10 paragraphs up till J. So सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये होती है कि इसको पूरे 20 मिनट्स के अंदर आपने इन सारे पैराग्राफ्स को पढ़ना भी है, आपने एमसीक्यूज भी फाइंड आउट करने हैं, आपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं, आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग टेक्निक्स प्रॉपरली यूज़ करें तो यही काम बहुत इजीली अटैम्प्ट हो जाता है एंड यू कैन स्कोर इजीली वेरी गुड मार्क्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक टेक्निक विच आई वांट टू शेयर इट विथ यू नाउ, प्लीज़ लुक एट दैट पैराग्राफ नंबर ए. हियर you can see that there are different words. Highlight them. Pitch black darkness, Nevada desert, a dome of hazy gold, Las Vegas 30, looking skywards, Big Dipper. So अभी आपने क्या किया है, important words जो से हैं उनको highlight कर लिया है. So if you are going to highlight the important words, so it will be convenient for you in order to give it a heading. तो अब यहाँ पर आपको इसको एक हेडिंग दे सकते. हर एक पैराग्राफ को आपने एक हेडिंग देना है. हेडिंग देने का मकसद ये होता है कि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इस हेडिंग में ये चीज़ मेंशन होगी. कैन यू सी दैट? यहाँ पर लाइट पोल्यूशन इज़ अ हेडिंग, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, साइड पर पेपर पे लिख देते हैं लाइट पोल्यूशन इज़ अ हेडिंग, दैट्स इट. उसके बाद इसके अंदर आप लोग डिफरेंट देखते हैं. हाईलाइटिंग वर्ड्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट? आर्टिफिशियल लाइट, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न, how many years? Past 15 years. Overlit shopping malls, 200 of the Milky Ways, 2500 stars are visible on a clear night, larger cities, 50% of the light, billboards, shopping center, private homes and skyscrapers, over illuminated. So these are the words which I have highlighted because I consider them important. इसी तरह से आपने इन वर्ड्स को हाईलाइट कर देना है. जैसे आप इनको हाईलाइट कर लेते हैं, आपके लिए जो पैराग्राफ है वो प्रिसाइज हो जाता है. अब आपको पता है कि हमें सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स देखने हैं और इन्हीं के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा. राइट, इसका आपने हेडिंग साथ ही दे देना है, दैट इज़ लाइट पोल्यूशन. कमिंग टू नंबर सी, अमेरिका सैटेलाइट इमेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मेजर सिटीज़, these are the names of major cities. McDonald Observatory in West Texas, proof of wastefulness, airplane you see on the ground from the city is wasted. That's it. So you have highlighted over here. You have to give another heading to it. So you have to give the headings to each paragraph. You have to highlight all those words. These are the important words. It will give you an idea that where and how you have to attempt the questions. Now if I'm scrolling down, there are different paragraphs. You have to do one by one with each of the paragraph given. Okay, now I'm going to show you the questions. Now these are the questions, question number 1 to 5. Now here there are list of headings which are given. Why lights are needed, lights discourages, lawbreakers, on and on up till 9 headings. The first answer is solved for you, and now you have to give the headings to the paragraphs. Paragraph B, C, D, E, F, right? And now you have to choose the headings. अब आपने headings यहाँ से लेनी है और आंसर्स आपने फिल करने हैं यहाँ पर. अभी मैं आपको इसके साथ ही आंसर्स भी शो करती हूँ. These are the answers. So now can you see one by one? Now these are the questions, these are the headings, and these are the questions with answers. First of all, paragraph B. Now coming toward paragraph B. When we talk about paragraph B, we have given the heading of light pollution, we have highlighted the words, and अब इसके अकॉर्डिंग आप इसके क्वेश्चन को देखो एंड इसके आंसर्स को. अब उसने आंसर बोला है कि पैराग्राफ बी में मोस्ट सुटेबल आंसर नंबर 8 है. अब 8 में अगर हम देखते हैं मोर लाइट देन इज़ नेसेसरी, और हम लोगों ने इसकी हेडिंग क्या बनाई थी? लाइट पोल्यूशन. सो इट इज़ रियली वेरी ऑब्वियस कि जब हम लोग हेडिंग बना देते हैं और वर्ड्स को हाईलाइट कर देते हैं तो हमारे आंसर में वहीं से फाइंड आउट हो जाते हैं. नंबर 8, मोर लाइट देन इज़ नेसेसरी. दिस इज़ बेसिकली your answer to paragraph number B. Okay, now coming toward paragraph number C. अब C में उन्होंने इसका आंसर बोला है number 7, but firstly we have to come to paragraph number C. C में हमने कुछ words highlight किए हुए हैं. अब C के अंदर
यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास आंसर है पैराग्राफ नंबर 7. सो seen from above. How? Now, can you see that? In an airplane, the light you see on the ground from the city is wasted. Now, you are basically looking from upwards. The view is from the airplane. जब आप एयरप्लेन में से बैठकर ऊपर से व्यू करते हो तो आपको सिचुएशन क्लियर नज़र आती है. तो हमारे पास जो आंसर इसका आ रहा है दैट इज़ नंबर 7 में है सीन फ्रॉम अबव. सो दिस इज़ वाई यू हैव टू हाईलाइट द वर्ड्स, यू हैव टू मेक हेडिंग्स. अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके आंसर्स ठीक आएंगे, राइट? अभी फॉर द टाइमिंग मैंने 3 आपको दिए हैं ताकि आप असेसमेंट लो कि किस तरह से टेक्निक्स को यूटिलाइज करना है. अच्छा, अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, दैट इज fill in the blanks. Now, these are the answers to the fill in the blanks. Can you see that? Number 6 till 9. These are the questions and now these are the answers. So I am going to open the answers and questions as well. Now, according to recent study, well-lit streets do not deter crime or make neighborhoods safe to live in. So this is given over here in this paragraph. So this is how you have to attempt it. Inefficient lights increase air pollution. अभी क्वेश्चन यहाँ पर है लाइट पोल्यूशन का, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द एयर पोल्यूशन, दिस इज द क्वेश्चन. बट अगर आप इसको गौर से देखो तो जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? कोल, गैस और ऑयल से. तो दिस इज इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग द एयर पोल्यूशन एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. सेम इज गिवन एज वेल in the paragraph. Air pollution, because most of the country's power plants are still powered by fossil fuels, more lights mean more air pollution. This is the basic answer, right? So this is how you have to find the questions and their answers. Next one, efficient lights block light from going into areas where it is not needed. Yes, जब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होगी तो वो क्या करेगा? लाइट को ब्लॉक कर देगा. In dealing with the light pollution, dash is at least as important as passing in new laws. Okay, now here you can see that this one, advisory council says that education is just as important if not so more. So basically this is the answer कि light pollution जो है उसको कंट्रोल करने के लिए education is more important. So all answers are given over here. Just there is the need that you have to find it properly. आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट किया होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को ढूंढना. जो लास्ट एंडिंग क्वेश्चंस हैं 10, 11, 12 एंड 13, इसमें आपको आंसर देना है येस, नो और नॉट गिवन में. येस अगर आपका क्वेश्चन के अंदर आंसर वहाँ पर पैराग्राफ में मौजूद है देन यू हैव टू टेल येस. अगर नहीं है तो नो. अगर हाफ इन्फॉर्मेशन गिवन है और हाफ नहीं है तो नॉट गिवन आएगा. इट्स नॉट दैट कि आपको हाफ इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपके पास हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप बोल रहे हैं येस और नो. तो जब हाफ इन्फॉर्मेशन दिया है और हाफ मिसिंग है मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज नॉट गिवन. सो मेक श्योर कीजिएगा येस और नो डायरेक्टली गिवन होते हैं और नॉट गिवन में हाफ इन्फॉर्मेशन दी होती है और हाफ नहीं दी होती है और समटाइम ऐसा होता है नेगेट किया होता है किसी पॉइंट को और उसमें एक्सेप्टेंस नहीं होती तो आपने नॉट गिवन चूज़ करना है. सो दिस इज़ वेरी ट्रिकी, सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. Question number 10. One group of scientists find their observation are made more difficult by bright lights. Yes, this is given. It is expensive to reduce light pollution. No, it is not expensive. It is very obvious from the paragraph. Now, number 12. Many countries are now making light pollution illegal. This is not mentioned in the paragraph. वहाँ पर education के बारे में mentioned है, but illegal है ये mention नहीं है. So, not given. All types of lights often cause more pollution than more modern ones. Yes, this is also given in the paragraphs. So this is how you have to attempt it. So this is really very important whenever you are going to attempt the paragraphs. Firstly, you have to highlight the words which are important. अगर आप highlight नहीं कर सकते आप underline करते हैं. Okay? पेपर के ऊपर साथ ही आपने मेंशन कर देना व्हाट इज़ द हेडिंग. उसके बाद जब सब पैराग्राफ्स को आप इसी तरह वन बाय वन स्पूल कर लेते हो, आप हेडिंग्स दे लेते हो, आप उनके बारे में प्रॉपर उनको हाईलाइट कर लेते हो, एट दैट मोमेंट आपने फिर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को.
अगर आप डायरेक्टली पहले क्वेश्चन की तरफ जाओगे, फिर पैराग्राफ्स की तरफ आओगे, फिर क्वेश्चन की तरफ जाओगे, तो ये जगलिंग के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होगा. हमें एटलीस्ट 15 मिनट्स के अंदर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को कंप्लीट करना होता है, बिकॉज देयर आर 3 सेशंस, सेशन 1, 2 एंड 3, 1-on-1. सो यू हैव टू बी श्योर कि आपका काम एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो और एफिशिएंटली कंप्लीट हो. उसके लिए इन टेक्निक्स को माइंड में रखना इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा एंड उससे आपने लर्न किया होगा. एंड अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस and we can give you a proper guideline how to attempt the questions. Okay, so that was all for today. Till next session, bye bye.